Dear students, Assalamu alaikum. I am Ghulam Nabi Mani. Eid Mubarak. Today my topic is area of area of triangle by Heron's formula. First of all, I would celebrate Eid and you will also celebrate Eid. मैं अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूँ कि ये ईद हम सब के लिए खुशी लेकर आए और हमारे तमाम मुश्किलात हल हो जाएंगे। ख़ासकर जो ये बीमारी है कोविड-19, इससे हमें निजात मिले ताकि बच्चे जो है वो स्कूल आ सकें और वो पुराना माहौल जो पढ़ने का था वो शुरू हो जाएगा। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल्स बाय हीरोन्स फार्मूला। We have studied in earlier classes about the figures of different shapes such as square, rectangle, triangle, and quadrilaterals. यानी कि पहले क्लासों में हमने we have earlier studied classes about we have earlier studied in earlier classes about the about the figures of different shapes such as squares, rectangles, triangles, and quadrilaterals to find the area of the triangle is equal to 1 by base into altitude. If we have given the base and the altitude of a triangle, in case of the right triangle, we apply Heron's formula, we apply Pythagoras form when we have given two sides and find the third side. Similarly many other figures we can find the area by different methods. Now if the length of the sides of a second triangle and are known and we do not know the height of a second triangle, then how we can find the area of an second triangle? सिंपली अगर हमें यानी कि आपको पता है कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है, अगर हम इसका एरिया निकालेंगे दैट्स इक्वल टू 1 बाय बेस इनटू हाइट। अगर हम किसी ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे दैट्स इक्वल 1 बाय बेस इनटू हाइट। जब हमें बेस भी मालूम होगी तो हाइट भी मालूम होगी तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमारे पास दो तीन और दूसरी किस्म की ट्रायंगल होगी जो मतलब राइट एंगल ट्रायंगल होगी, अगर हमें उसका एरिया ढूंढना होगा तो सिंपली अगर हमारे पास कोई भी दो साइड उसके मालूम है तो हम इसका निकालते हैं तीसरा साइड बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। तो इस वजह से हम उसके तीन साइड निकालते हैं, फिर उसका हम एरिया निकाल सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट्स कॉल्ड लेंथ इनटू ब्रेडथ, इसी तरह से अगर हम निकालेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर दैट्स कॉल्ड साइड स्क्वायर। तो अगर हमारे पास सेकंड ट्रायंगल है उसके साइड्स हमें दो मालूम होंगे लेकिन उसकी हाइट मालूम नहीं होगी, हाउ वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ दैट ट्रायंगल? अगर उसके तीनों साइड हमें मालूम है तो उसकी हाइट मालूम नहीं होगा, तो हाउ वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ दैट ट्रायंगल? तो दिस टाइप ऑफ ट्रायंगल इज Heron was a mathematician. Heron was born in about 10 AD, possibly in Alexandria in Egypt. He worked in applied mathematics. His works on the mathematics and physical subjects are so numerous and varied that he is considered to be the encyclopedia writer in those fields. यानी कि फिर एक मैथमेटिशियन आया जिसका नाम था हीरान। वो इजिप्ट में मतलब पैदा हुआ था 10 एडी में अलेक्जेंड्रिया में। इसने बहुत सारे यानी कि ही वर्कड इन अप्लाइड मैथमेटिक्स his work in the mathematics and physical subjects are so numerous and varied that he is considered to be the encyclopedia writer in these fields. Heron derived the formula for calculating the area of the triangle whose three sides are given. The formula is area of triangle is equal to square root of s into s minus a, s minus b, s minus c, where a, b and c are the sides of a triangle and s is the semi perimeter. Now if we do know, now s is derived by
A plus B plus C divided by 2, that is the half of the perimeter. अगर हम बात करेंगे सेमी पेरीमीटर के, दैट्स कॉल्ड हाफ ऑफ द पेरीमीटर. अब हम क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं. A traffic signal board indicated that school ahead is an equilateral triangle with sides A. Find the find the area of the signal board. अच्छा, signal board using Heron's formula. If its perimeter is 180 meter, 180 centimeter, what will be the area of the signal board? तो एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है, लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ स्कूल है हेड. ये इसलिए लिखा गया ताकि ये जो ड्राइवर हजरात हैं, ये जो गाड़ियाँ चलाते हैं, वो देखेंगे साइन बोर्ड को और वो अपनी गाड़ी को स्लो करेंगे. बहरहाल यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो एक, यानी कि हमारा एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है इंडिकेटिंग ए स्कूल हेड इज इन द फॉर्म ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल. वी नो दैट इन a triangle whose all the sides are equal is called an equilateral triangle. Since traffic signal board is written is in the form in the shape of equilateral triangle, so area of we can find the semi perimeter of that. हर एक साइड इसमें साइड ए है क्योंकि इसमें दिया गया है. Therefore semi perimeter is equal to a plus b plus c divided by 2, that's equal to 3a divided by 2. निकल गया इसका सेमी पेरीमीटर. अब हम अप्लाई करेंगे हीरोन्स फॉर्म. एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c. s का वैल्यू क्या है 3a डिवाइड बाई 2 इंटू 3a डिवाइड बाई 2 पहला साइड a, ऐसे 3a डिवाइड बाई 2 दूसरा साइड a है, 3a डिवाइड बाई 2 तीसरा साइड. तो ये इसके यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम. 3a इंटू 2a, 3a माइनस 2a डिवाइड बाई 2, ऐसे 3a माइनस 2a डिवाइड बाई 2, 3a माइनस 2a डिवाइड बाई 2, दैट्स इक्वल a डिवाइड बाई 2, a डिवाइड बाई 2, a डिवाइड बाई 2, दैट्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3a रेज्ड पावर 4 डिवाइड बाई 2 रेज्ड पावर 4. यानी कि अगर हम 2 रेज्ड पावर को रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, ये निकलेगा a स्क्वायर. ये बनेगा रूट 3a स्क्वायर डिवाइड बाई 4. अब आपके पास निकल गया है एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू रूट 3 बाई 4 ए स्क्वायर, रूट 3 बाई 4 ए स्क्वायर. अगर आपको कहीं भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए एरिया निकालना होगा तो आप ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं. एरिया नाउ इफ द पेरीमीटर ऑफ सिग्नल बोर्ड इज 180 सेंटीमीटर, अगर सिग्नल बोर्ड का पेरीमीटर क्या है 180 मीटर, तो दैट मीन्स a प्लस a इज इक्वल टू 180 मीटर. एक ए 2a और 3 है, 3a इज इक्वल टू 180 मीटर. 180 सेंटीमीटर, a इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 3, दैट्स इक्वल 60. a इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर. निकल गया a आपके पास 60 सेंटीमीटर. अब एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड इज इक्वल टू रूट स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाई 4 a स्क्वायर, दैट्स इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ 3a का है वैल्यू है 60 इंटू 60, दैट्स इक्वल 4. 6 are 36. 3600 divided by 4, that's equal to 900. 900 square root of 3 centimeter square. Hence the area of the signal board is 900 square root of 3 centimeter square. अब क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास. There is a slide in a park. One of its side wall has been painted in some colors with a measurement of the sides of walls are 15 meter, 11 meter and 6 meter. Find the area. A हमारे पास 15 मीटर है, B 11 मीटर है, C 6 मीटर है. तो हमें क्या निकालना, सेमी पेरीमीटर, दैट्स इक्वल A प्लस B प्लस C डिवाइड बाई 2. सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू 15 प्लस 11 प्लस 6 डिवाइड बाई 2, दैट्स इक्वल 32 डिवाइड बाई 2, दैट्स इक्वल टू 16 मीटर. Apply Heron's formula. Area is equal to square root of s into s minus a, s minus b, s minus c. That's called 16 into 16 minus 15, 16 minus 11, 16 minus 6. 16 minus 15, that's called 1. 16 minus 11, that's called 5. 16 minus 6, that's equal to 10. तो जब हम इसका निकालते हैं तो ये निकलता है 20 स्क्वायर रूट ऑफ 2 मीटर स्क्वायर. Hence the area of the slides of the park is 20 root 2 meter square. That's all for today. Celebrate Eid. Thanks.